of FBHP. So using average jet factor and temperature method, I have determined the PWF, and PWF will be this. Now I also discussed, if we compare this FBHP equation with Weymouth equation, so some flow corrections will be there. So this was the discussion which we had yesterday, and that is the flow correction. So if we compare this equation with the Weymouth equation, there will be some correction. So this correction will be for the effective length. This we already have discussed yesterday. So the same equation can also be compared with the equation for horizontal flow, and this is the equation which we have determined, solved for QSC. Okay, and you also know the Weymouth equation, so we can compare this equation with the Weymouth. So the difference will be only because of this LE, and that is LE is the actually correction factor, okay, between the horizontal and vertical flow. Yeah, so this was the this starts with the determination of FBHP from here, and we use the average temperature jet factor method to determine FBHP. So first we have determined the FBHP, I mean PWF. Then I have compared this equation of vertical flow with the Weymouth equation, or you can say the equation of horizontal flow. So after comparing, I can determine what is the difference between these two equations. This is the difference, and that is called the correction factor. Okay. So this ends with the theory of the gas flow for horizontal and vertical flow. Three equations. In vertical, again 3 equations: average temperature method, average temperature jet factor method, supercornell, and this Colander-Smith method. And there is one more expression for the determination of PWF. So if we want to determine PWF, we can also determine PWF, which is actually the flowing bottom hole pressure. So you need not to consider QSC always 0. So if QSC is 0, equation looks like very simple to solve, but for the real case, or for the, I mean, when you are having flow rate at the surface, so in that case you will determine PWF, and PWF can be determined like this. Okay, if you have any doubt regarding this, because after that, yes, these were the deliverability equations, some general world gas production in India and in other countries. Then I discussed about this connected gas reservoir. ये सब फंडामेंटल्स ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं. तो इसमें कोई डाउट है तो स्टिल यू कैन आस्क मी, बिकॉज नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द solution of the numerical based on the vertical flow, gas flow in vertical pipelines. So regarding this, if we have any doubt, please let me know now. And you will better understand through the numerical how do we utilize these equations to determine the flow rate at the surface for natural gas. Or the case may be both. Like I will solve both the numericals based on the FBHP and SBHP. So in SBHP equation, I think will be simpler to use, but in FBHP you have to use the whole expression and you have to determine PWF also. So मैं दोनों numerical कराऊंगा आपको. But regarding the theory, is there any doubt? Is there any confusion, discussion? So please let me know now. No question? ठीक है, then we'll move to these determination. So these numericals. So in numerical, for today, I have included 4 numericals. So these are based on first
this determination of SBHP. Then this numerical is based on the flowing bottom hole pressure FBHP. तो दोनों न्यूमेरिकल हम करेंगे आज. देन विल सी. यहाँ पर तो एवरेज टेम्परेचर एंड जेट फैक्टर मेथड पूछा है. यहाँ पर आपको SBHP निकालना है बोथ बाय एवरेज टेम्परेचर एंड जेट फैक्टर एंड सुकर मेथड. तो दोनों से निकालना है और विल सी हाउ डू वी the Zucker Cornell table to determine this SBHP. Okay. Then एक मैंने PVT पे भी दिया है आपको, which is based on the determination of RS, BO and BT. इसमें एक न्यूमेरिकल और है जिसमें आपको मैंने जस्ट जनरल पूछा है how many moles of gas are in the tank. So this is also the material balance क्वेश्चन है और some basic gas properties will be utilized also here. तो ये 4 न्यूमेरिकल्स मैंने सोचा डिस्कशन करेंगे. So let us try the first numerical, which is based on the SBHP, determination of SBHP, static bottom hole pressure, which is PWS by average temperature and jet factor method and by Zucker Cornell method. ठीक है, तो मैं आपको साथ में हेल्प करूंगा, बट आई वांट दैट यू शुड ट्राई फर्स्ट. देन इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, स्लाइड्स तो मैंने आपको आज भेज ही दिए हैं, आप इक्वेशंस वहां से भी देख सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास SBHP का एक्सप्रेशन है, इसमें PWS पूछ रहा है और बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम न्यूमेरिकल से ढूंढते हैं क्या क्या हमें मिल सकता है. तो डेप्थ मेरे पास है, तो मेरे पास स्मॉल जेड है, गामा है, TWH मेरे पास है, WS भी मेरे पास, तो ये दोनों तो मिल गए. देन वेलहेड प्रेशर भी है आपके पास 400 psi. सो डिटरमाइन PWS बाय दिस मेथड. ठीक है, तो कोशिश करो कि आप इसको कैसे करेंगे. आप इस इक्वेशन को यूज करना है और एवरेज टेम्परेचर एंड जेट फैक्टर मेथड बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको जेड एवरेज भी निकालना है. और जेड एवरेज निकालने के लिए आई थिंक आपको फिर से वही स्टैंडिंग कार्ड चार्ट लगेगा जिसमें आपको PR एवरेज निकालना पड़ेगा और TR एवरेज निकालना होगा. तो इन दोनों को यूज करके आप पहले जेड एवरेज निकाल लेंगे. T एवरेज ऑलरेडी आपके पास होगा. ठीक है, तो जस्ट और बाकी सब इधर राइट आएगा, फिर तो ये सॉल्व हो सकता है लिमिट के साथ. तो कोशिश करो पहले आप थोड़ा सा, मैं देन हेल्प करूंगा आपको. न्यूमेरिकल इज हियर. तो लुक एट द डेटा केयरफुली, जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो ले लो और इसको सॉल्व करो. ठीक है, तो ट्राई दिस. एंड एक चीज है, मैं आपको उसको बता देता हूँ. अभी आपके पास T एवरेज निकालना है आपको, तो एवरेज के लिए TWH है और TWS दोनों दिए हैं. नाउ इन बुक में यदि आप ये न्यूमेरिकल्स बुक से भी हैं, तो इफ यू लुक इन द बुक, तो T एवरेज क्या है, TWS उसने T1 प्लस T2 से किया. बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे मत करो. आप क्या करो कि T एवरेज जो है ना, लॉगरिथमिक T एवरेज निकाला करो हमेशा, दैट इज बेटर. तो आप इसमें यदि लॉगरिथमिक T एवरेज निकालोगे तो वैल्यू दूसरा आएगा, और T1 प्लस T2 बाई 2 से करोगे तो वैल्यू दूसरा आएगा. बट हम नॉर्मली जैसे जैसे मैंने आपको P एवरेज का बताया है, आपको P एवरेज भी निकालना पड़ेगा. तो P एवरेज इफ यू सिंपली राइट P1 प्लस P2 बाई 2, ठीक है, दैट डजंट मेक सेंस टू मी. बेटर है कि आप इसको 2 बाई 3 P1 से कीजिए. करने के लिए आप P1 प्लस P2 बाई 2 भी कर सकते हो,
और T1 प्लस T2/2 भी कर सकते हो, बट और आंसर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बट द करेक्ट मेथड इज के दैट यू यूज लॉगरिथमिक टी एवरेज। तो टी एवरेज उससे निकालो आप, और टी एवरेज के बाद पी एवरेज चाहिए। तो पी एवरेज जो है आपके पास P1 और P2 से चाहिए, बट जो हॉरिजॉन्टल में है उसमें हम क्या करते हैं, P2 नॉर्मली एटमॉस्फेरिक हो जाता है, तो इट इज 0, बट हियर P2 इज एक्चुअली PWH। ठीक है, और वेल हेड प्रेशर मेरे पास, सॉरी, एक वेल हेड प्रेशर दिया है विच विल बी फॉर वन लिमिट, एंड सेकंड लिमिट होगी PWS का। अब हमारे पास PWS एक्चुअली गिवन नहीं है टू डिटरमाइन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द पी एवरेज। तो उसके लिए इसी एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन दिया है फॉर द डेप्थ। सो व्हेन प्रेशर वेरीज विद द डेप्थ, सो 0.25 का ग्रेडियंट आप उसमें यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेकिंग द डेटम वैल्यू ऑफ द PWS एज पर द डेप्थ। तो आप ये एक्सप्रेशन भी थोड़ा याद रखना। तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है डेटम वैल्यू ऑफ PWS यू कैन डिटरमाइन फ्रॉम हियर। जब यहां से डिटरमाइन करोगे तो एक PWS मिलेगा आपको और एक PWH मिलेगा। आप चाहो तो इन दोनों को भी करके आप पी एवरेज निकाल लो, चाहे तो वैसे भी कर लो, चाहे कैसे, आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएंगी। और यहां से टी एवरेज निकालो, तो यहां से पी एवरेज और टी एवरेज निकाल के देखो कितना आ रहा है। पहले तो PWS निकाल लो, यूज PWH प्लस 0.25 PWH, दैट इज द ग्रेडियंट। तो डेप्थ के साथ जो प्रेशर का ग्रेडियंट है वो इस तरह से एज्यूम किया गया है। यूज दिस एक्सप्रेशन एंड डिटरमाइन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ PWS। तो ऐसे सॉल्व करके देखो और दोनों का एवरेज लो तो उससे पी एवरेज आएगा। पी एवरेज और टी एवरेज और देन क्रिटिकल प्रॉपर्टीज को भी एज्यूम करना पड़ेगा आपको, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो पीपीसी टीपीसी फिर से वही ले लेना जो हमने पहले एज्यूम किए थे, 63 ले लो और 387 डिग्री रेनकाइन ले लो टेम्परेचर। तो ये क्रिटिकल प्रॉपर्टीज विल बी गिवन टू यू। ठीक है, नाउ यूज देम एंड डिटरमाइन दी पी आर एंड टी आर। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू विल डू टू डिटरमाइन दी जेड एवरेज। देन जेड एवरेज निकल जाएगा स्टैंडिंग कार्ड चार्ट से। Is the method clear to everyone? पी एवरेज आ रहा है 425, ओके, है 115.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अच्छा, तो अब आप मृग्या, बिकॉज यू हैव आंसर्ड, तो आप 663 पीपीसी ले लो और टीपीसी 370 डिग्री रेनकाइन लेके पी आर और टी आर यूज, पी एवरेज आर निकालो, टी एवरेज आर निकाल के आप जेड एवरेज निकाल लो स्टैंडिंग कार्ड चार्ट से। तो वो तो डायग्राम आपके पास होगा, तो बताओ मुझे कि जेड एवरेज कितना आ रहा है। वन मोर थिंग, इफ यू डिटरमाइन दिस ना, जैसे आपने ये 425 निकाला है पी एवरेज,
और मैं पी एवरेज को ना उस फॉर्मूले से निकालता हूँ। सुपर आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, पी एवरेज इज इक्वल टू 2/3, 1 मिनट, 2/3 P1 क्यूब माइनस P2 अपॉन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। इससे भी निकालोगे ना तो वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 425.4 आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर लीजिए, आपके आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एंड देन अब इसको दोनों को यूज करके टेल मी द वैल्यू ऑफ जेड एवरेज। व्हाट इज जेड एवरेज? अच्छा, 0.97, ठीक है। माई वैल्यू इज 0.962, मेरे पास 0.962, ठीक है, इट्स ओके। 0.97 इज द वैल्यू, जेड एवरेज है। तो अब आप इजीली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। एवरीवन यूज दिस फॉर्मूला एंड आपके पास स्मॉल जेड भी है, गामा है, जेड एवरेज आपने निकाल लिया, टी एवरेज आपको पता है, और फिर इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो यहां से जो लिमिट है ना, एक लिमिट निकल जाएगा पीडब्ल्यूएस एंड यस। अब यहाँ से आप पीडब्ल्यूएस चाहो तो ऐसे निकाल दीजिए, तो आपको फिर एस पता होना चाहिए, तो आप जैसे चाहे वैसे निकाल लीजिए एंड चेक व्हाट इज पीडब्ल्यूएस। तो पीडब्ल्यूएस देखो क्या आ रहा है आपका, that will be the first method to determine the PWS by average temperature and jet factor method. Anyone else with the answer? What's the value of WS? इस मेथड से PWS कितना आ रहा है, और फॉर्मूला आपके पास है ही, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। आपको PWS GWH e रेज़ टू पावर s/2 में रखिए, सारी वैल्यूज मैंने डिटरमाइन करवा दी है, सब कुछ अवेलेबल है, खाली जेड एवरेज निकालना था। तो बहुत determine the PWS by this method and then we will shift to the Zucker Cornell method and we'll see कि क्या डेविएशन है दोनों में। आंसर इज 449
0.8 psi है, ठीक है, इट्स ओके। या माइन इज 0.01 आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। अब आगे चलो, ये पार्ट सबको क्लियर होगा आई थिंक, नहीं है तो प्लीज let me know, I can again repeat. Now we will solve the same numerical by Zucker-Cornell method, and for that I can show you the formula here. Yes. अब क्योंकि SBHP है तो this term will be 0 as we know, तो आपके पास इक्वेशन बचेगा ये फाइनली, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आपके पास राइट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है, तो उसको आप सॉल्व ऑलरेडी कर लो और इसको लिख लीजिए राइट हैंड साइड में पहले। अब तो बचेगा आपके पास खाली यही फैक्टर बचेगा, दिस वन टू डिटरमाइन, खाली आपको इसी को सॉल्व करना है आप बस। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक लिमिट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, क्योंकि लिमिट में देखो आप क्या है, PRWH एंड एक है PRWS, तो मुझे PWS निकालना है, तो दिस लिमिट कैन नॉट बी एक्चुअली डिटरमाइंड नाउ, बट आई कैन रिपीट द आंसर। आंसर इज 44901, 449.01 मेरा आंसर ये है, और मृज्ञा का आंसर अरुणिमा है 449.8 समथिंग, यही आ रहा है तुम्हारा भी। आंसर इज 449.88, तो आप 449 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। नाउ वी आर सॉल्विंग द सेम न्यूमेरिकल बाय Zucker-Cornell मेथड, और Zucker-Cornell मेथड में मैंने प्रोसीजर अभी बताया था, ये इक्वेशन रहेगी इफ यू आर डिटरमाइनिंग PWS और PWH PWF डिटरमाइन करोगे तो दिस विल बी द इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन में फर्क है, इन दैट केस हमें बी निकालना पड़ेगा। और याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, की जरूरत पड़ेगी, और एफ हम लोग निकालेंगे उसी से ही, रेनॉल्ड्स नंबर से, ठीक है। सो इन दैट केस वी विल रिक्वायर QSC आल्सो, तो वो QSC आपको मिलेगा, ठीक है। देन आप रेनॉल्ड्स नंबर निकाल के एफ निकाल लेना, और एफ निकाल के फिर यहाँ पे सबको रख सकते हो आप, यहाँ से बी आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे इटरेशन भी अप्लाई करना पड़े, वाई, क्योंकि आपको पहले QSC भी निकालना पड़ सकता है, तो QSC आप दूसरे मेथड से निकालोगे और उस वैल्यू को यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू यूज करोगे टू डिटरमाइन दी बी, देन एफ निकलेगा। फिर हो सकता है कि जो डिटरमाइंड क्यू होगा फिर उससे नया रेनॉल्ड्स नंबर इटरेशन अप्लाई होगा, दैट्स ऑल। तो ठीक है, वो भी हम देखेंगे, बट फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय सिंपल वे, और हमें पूछा गया है SBHP न्यूमेरिकल में, Zucker-Cornell से करेंगे इसको। Zucker-Cornell में आई टोल्ड यू दिस, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस कैन बी सॉल्व इजिली, एंड इसका वैल्यू लिख लीजिए राइट हैंड साइड में। अब बचा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल फॉर्म है ये सॉल्व होगा, तो मैं टेबल से इसकी लिमिट आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं, बट आपके पास पहले एटलीस्ट लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट है मेरे पास PRWS और दूसरा है PRWH। ऑफकोर्स मुझसे PWS पूछा है, तो दिस लिमिट कैन नॉट बी सॉल्व नाउ बिकॉज मुझे यही निकालना है, और Z/PR की जो टोटल वैल्यू है, Z/PR del PR, इसको हम टेबल से निकालेंगे, बट दिस कैन बी डिटरमाइंड, ये निकाल सकते हैं। तो आपके पास PWH 400 है ना, उसको डिवाइड कर दो जो भी आपने एज्यूम किया है ना PPC उससे, तो इससे आपको PRWH मिलेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू, 400/663, 400/663 आ रहा है 0.64, तो जो मेरे पास लिमिट है वो यूज कर लो अब आप। हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे, 1 मिनट, 0.64 टू PRWS, ठीक है। अब यही आपको सॉल्व करना है, ठीक है सर। 0.6 है तो 0.6 ले लेते हैं, ठीक है। 0.6
to PRWS. अब PRWS 2.6 है. नाउ लुक एट द टेबल. टेबल दिखाता हूं मैं आपको. सुगर कॉर्नल, आपको बुक में टेबल सुगर कॉर्नल दो फॉर्म में मिलेगा. दिस इज दिस टेबल फॉर सुगर कॉर्नल वेयर b इज इक्वल टू 0. और याद आएगा कि आपको b जब 0 होता है, जब हमें QSC 0 करना पड़ता है. इट मीन्स दिस टेबल विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन PWS. समटाइम्स यू विल फाइंड दिस वैल्यू आल्सो देयर. वो ऐसे दिखेगा आपको. 1 मिनट. ये सब PWS इज इक्वल, जब आपको Q 0 करना है तब के लिए है. बट व्हेन Q इज नॉट 0, then there will be value of b, and this will be the value of b. suppose value of b आ रहा है 5. ऐसे ऐसे आपको डिफरेंस देखना है कि which table I am going to utilize. If you are going to use this table and determining PWS, this is wrong. This table is actually the PWF. तो हमारे पास PWF होता है तब Q 0 नहीं होता है. उस केस में b की वैल्यू आएगी. b क्या है वो मैं फिर से बताता हूँ. दिस इज द b. तो ये b वैल्यू तभी आएगी जब आप PWF निकालोगे. इट मीन्स Q इज नॉट 0. आपने शट नहीं किया है. बट व्हेन यू विल अप्लाई शट इन, QS कम 0. उस केस में b 0 होगा. और टेबल को आपको केयरफुली देखना है कि कौन सा टेबल मुझे फिर यूज करना है. देन आई विल यूज दिस वन. देन मेरे पास ये टेबल होगा. ठीक है. तो ये b इज इक्वल टू 0 के लिए है. एंड द अर्लियर टेबल वाज फॉर b इज इक्वल टू 5. आपको ऐसे भी और भी इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 20. तो आपको एक रेंज मिल जाएगा हर बार. तो आप उसमें देख सकते हैं कि कहाँ से मुझे ये वाला टेबल यूज करना है. तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको कौन सा टेबल यूज करना है. और अगेन दिस टेबल इज आल्सो इन बिटवीन TR एंड PR. अच्छा, एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट टेबल में. लिसन दिस केयरफुली. दिस टेबल इज सिमिलर टू क्लिंडेंसी टेबल, बट द फर्स्ट लिमिट इज 0.2 एंड इन क्लिंडेंसी इट वाज 0. सो इट मीन्स आपके पास जो भी लिमिट आया था ना, ये वाला न्यूमेरिकल्स में जब हमने देखा था, तो सॉल्विंग द न्यूमेरिकल एक लिमिट आया था. 0.6 आया था शायद. हाँ, मृज्ञ ने बताया था ना. हाँ, 0.6. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको ऐसे लिख सकते हैं. 0.2 टू PRWS माइनस 0.2 टू 0.6. और क्लिंडन सेट में क्या करते थे आप? ये 0 हो जाता था बस. याद आ गया होगा आपको. तो यहां ध्यान रखना, सुकर कॉर्नल और क्लिंडन सेट में यही डिफरेंस है कि इनकी जो सबसे मिनिमम लिमिट है वो 0.2 से स्टार्ट होती है सुकर कॉर्नल में, और क्लिंडन सेट में 0 से स्टार्ट होती है. 0 ना ही ढूंढे तो अच्छा है, ये 0.2 से चलेगा और 0.2 का ही पहला लिमिट होगा. तो हम ऐसे लिख सकते हैं. और दिस वैल्यू आई कैन डिटरमाइन नाउ फ्रॉम द टेबल. 0.6 टू 0.2. 0.6 टू 0.2 इस टेबल में कहाँ मिलेगा? तो अब यहाँ पे आओ आप. आपके पास TR की वैल्यू क्या है? 1.45 के आसपास आएगी. तो वो यहाँ पे होगी वैल्यू. सपोज 1.45 या 5 है, 1.5 है. और PR आपने निकाला होगा. PR कितना आ रहा है? मेरे पास है PR 0.64. तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? ये TR हो गया. और दिस साइड आपके पास लिमिट है. तो आपकी जो 0.6 है ना, वो वैल्यू यहाँ आ गई होगी. इन दोनों के बीच में है. तो आपको ये दोनों के बीच में ही वैल्यू मिलेगा, 0.6 टू 0.2. तो जो मैं लिमिट ढूंढ रहा था ना, 0.2 टू 0.6, दिस विल बी. अब प्लीज कैन यू टेल मी दिस व्हाट विल बी दिस वैल्यू? एटलीस्ट आप डिटरमाइन भी करो. इंटरपोलेशन लगाओ. 0.2 टू 0.6 की लिमिट निकालो 0.5 और 1 के बीच में, क्योंकि आपके पास 0.6 है, ये 0.5 है एंड देन 1 है. तो इन दोनों के बीच में आएगी वो. 0.8897 से वैल्यू ज्यादा होगी और 1.5334 से कम होगा वैल्यू. तो देखो कितना आ रहा है वो वैल्यू. टेल मी दिस वैल्यू बाय यूजिंग दिस इंटरपोलेशन बिटवीन दीज टू वैल्यूज.
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 0.6 to 0.2, लिमिट का वैल्यू निकालो। Tell me the value of this limit. It's coming 1.0134. It seems okay to me, but I can ask that if anybody can provide the same value, then it will be confirmed. Is there anyone who has determined the same value of this limit as 1.01347? किसी और का ये वैल्यू आ रहा है 1.01347, सबका सेम आ रहा है? So then this value is okay. Actually this seems to me okay, but confirm कर लो आप लोग भी, आपका यही वैल्यू है। नाउ अरुणिमा, आपके पास ये वैल्यू आ गया लिमिट का, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें, हाँ ऐसे देखो आप, ये वैल्यू आ गया और इजिकल टू है आपके पास दिस वन, तो मुझे इसका वैल्यू भी देख लो कितना आ रहा है, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ इस लिमिट को। तो जब ये इसमें जुड़ जाएगा तो आपके पास कुछ ऐसे बचना चाहिए। 1 मिनट। आपके पास कुछ ऐसे बचना चाहिए, 0.2 to PR WS is equal to, I don't know what will be this value, तो determine this value also, इसका वैल्यू भी निकाल लो, ये जो मैंने किया है अभी यहाँ पे, है ना। और इसको, और जो वैल्यू आया ना आपका 1.01, इनको जोड़ दो, तो 1.01347 प्लस दैट वैल्यू जोड़ो, कितना आ रहा है। तो देखो ये वैल्यू टोटल कितनी आ रही है। टेल मी दिस वैल्यू, द फाइनल वैल्यू जुड़ने के बाद कितना आ रहा है। Tell me that value. This is 1.58147. 1.58147. Why there is difference between these two values? अरुणिमा का आ रहा है 1.1268. I don't know कैसे कर रहे हैं आप लोग, आपकी वैल्यू अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो लिमिट का वैल्यू है वो तो इंटरपोलेशन से ठीक आना चाहिए, वो कांस्टेंट ही होगा। और जो मैंने ये वैल्यू निकलवाया है, ये दिस इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आपके बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि अरुणिमा, द वैल्यू गिवन बाय अरुणिमा इज 1.12। यस, दिस सीम्स ओके, क्योंकि यही मेरे ख्याल से होना चाहिए। आंसी का भी यही आया, यस।
तो मृग्या प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस, इट विल बी अराउंड 1.1268 या 1.1274। ये दो आंसर, एक आंसर और मिला है मुझे। इट सीम्स कि यहाँ पर शायद ठीक है, और वो मेरे से भी मैच हो रहा है ऑलमोस्ट। तो आपको अपना थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। अब आपके पास ये वैल्यू आ गया है, तो नाउ लिसन दिस केयरफुली। आपके पास वैल्यू आ रहा है 0.22 PRWS इज इक्वल टू 1.1274। अब आपके पास उल्टा हो रहा है, जैसे अब आपको टोटल की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। अब टेबल में से आपको ये ढूंढना है कि ये वैल्यू किस लिमिट के लिए हो सकती है, ठीक है। तो उल्टा करना है, खाली आपको यही टेबल फिर से यूज करनी है, और यू हैव टू डिटरमाइन नाउ द रिवर्स वे कि व्हाट विल बी दिस लिमिट जहां पर ये वैल्यू टेबल से मिल जाए। तो बस ये करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान रखना है आपको, जब आप PRWS निकालोगे, PRWS, तो अगेन आपको यहाँ पर TR यूज करना है, बट दैट TR विल नॉट बी TRWH, दैट विल बी TRWS। ये जरूर ध्यान रखना हमेशा, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको TRWS यूज करना है इंस्टेड ऑफ TRWH। तो हमने पहले जो यूज किया था वो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या निकाल रहे हो आप। जैसे मैंने PWH निकाला होगा पहले, जब मैंने लिमिट यूज करा था ना PWH निकालने वाला, तो तब मैंने TRWH लिया था। अब आपको TRWS लेना है, तो TRWS देख लो कितना आ रहा है। आपके पास TWS भी है, और TWS बाय कितना 387 कर दो, तो आपके पास TRWS आएगा। टेल मी दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TRWS? Tell me the value of TRWS. It's 1.6। ओके, अब आपके पास TRWS आ गया, तो अब आप टेबल में फिर से जाओ। टेबल में दिखाता हूं मैं। हाँ, ये आ रहा है 1.6, तो 1.6 ये है इस टेबल में। अब आपको देखना है कि आपकी जो वैल्यू थी ना, वन कितनी वैल्यू, सॉल्यूशन कहाँ गया? हाँ, 74.1274, अगेन यहीं पे होगी वो भी, ठीक है। अब मेरे पास, लिसन एवरीवन, मेरे पास बीच की वैल्यू दी हुई है। ये वाला वैल्यू जो है ये दिया हुआ मुझे 1.1274, और बट यहाँ का लिमिट नहीं पता है मुझे अब। तो बस आपको अब लिमिट निकालना है कि ये वैल्यू किसके लिए होगी। तो सेम इंटरपोलेशन अप्लाई कर दो, और देखो कि ये वैल्यू किसके लिए आता है। पहले वैल्यू निकाल रहे थे हम, तो लिमिट पता था, अभी वैल्यू पता है, लिमिट निकालनी है। तो ऑफकोर्स ये 1 से तो छोटी होगी, और 0.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि लिमिट भी यही, इसका इसका वैल्यू भी यही बोल रहा है। तो ये करके देखो कितना आ रहा है, जरा इसको भी यूज करो, रिवर्स वे में इंटरपोलेशन लगाओ, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लिमिट नाउ, कि व्हाट विल बी दिस लिमिट फॉर दिस वैल्यू। तो टेबल को हम उल्टा यूज कर रहे हैं अब, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास PRWS का। सी व्हाट इज दिस वैल्यू, चेक द वैल्यू। टेबल में दिखा देता हूं आपको, दिस इज द टेबल। टेबल में आपके पास दो वैल्यू दिए हुए हैं, यूज द इंटरपोलेशन, एंड अगेन आप लिमिट का वैल्यू निकाल लो। इट्स कमिंग 0.6757। हाँ ठीक है ये, यदि किसी और का डिफरेंट आ रहा है तो दिस आंसर इज करेक्ट, 0.675 ठीक है। एनीबडी एल्स विद द डिफरेंट आंसर, तो प्लीज चेक योर आंसर्स कैलकुलेशंस। अब वो आपके पास इसमें वैल्यू आ गया, PRWS आ रहा है मेरा P 0.67577। बस तो PRWS क्या है आपका, एक्चुअली PWS अपॉन PPC से मल्टीप्लाई करो, रिमा बताना आंसर कितना आ रहा है, व्हाट इज PWS? 663 से मल्टीप्लाई कर दो,
इट्स कमिंग 447, हाँ 447, यस ये सही है। ये आंसर सबके मैच कर गए हैं, ये मेरा भी मैच कर रहा है, 447 है। 663 इंटू 0.67, 444 है मेरे पास, 444 समथिंग, बट इट्स ओके, दिस आंसर इज करेक्ट, आई कैन एक्सेप्ट दिस। तो ऐसे हम निकालते हैं। और अभी आप देखो यहाँ पर आया 447, और अर्लियर जो हमने निकाला था वो शायद 449 के आसपास था। तो देखो दोनों मेथड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। और ऐसे ही हमने पहले भी किया था, वहां पे जो हमने सॉल्व किया था ना पिछली बार उसके लिए। तो हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक आ रहा है 449.88, दिस इज बाय एवरेज मेथड, एंड सुकर कॉर्नर से आ रहा है 447 पॉइंट समथिंग, सपोज 2322। तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दीज आंसर्स आर करेक्ट। और आप जब भी करो ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, तो आप देख लिया करो कि जो एवरेज मेथड से आंसर आ रहा है ना उसी के आसपास आपका आंसर आएगा दूसरे मेथड से भी जो टेबल पे बेस्ड है, सुकर कॉर्नर। तो ऐसे कंफर्म करके हमें पता चल जाता है कि कहाँ से हम जो, अच्छा टेबल को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए लिमिट वाइज, तो वो मैंने आपको सिखाया है। आपको दोनों वे में टेबल यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको वैल्यू मिला हो या लिमिट पता हो तो टेबल को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए, तो मैंने वो सिखाया है। उसमें कहीं भी कोई डाउट है, लाइक मेरे, अच्छा सुकर कॉर्नर में 0.2 से चालू होगा, ध्यान रखना हमेशा। तो जो भी टेबल आप यूज करो उसमें ध्यान रखना कि करो b इज इक्वल टू 0 देख लेना, वो एसबीएचपी के लिए होगा। और टेम्परेचर जरूर देख लेना, जब आप पी आर डब्ल्यू एच का लिमिट लिखोगे यहाँ पर तो टी आर डब्ल्यू एच ही लगेगा यहाँ पर, और पी आर डब्ल्यू एस के लिए टी आर डब्ल्यू एस लगेगा, ये ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। और ऐसे ही हमने वहां पे भी किया था, हॉरिजॉन्टल में हमने पहले वेव से निकाला और देन फिर सेट से भी निकाला, तो दोनों आंसर को हमने कंपेयर करके देखा। ऐसे ही यहाँ पे भी वर्टिकल के लिए मैंने आंसर कंपेयर कराया आपको, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो हम कल करेंगे, विच विल बी बेस्ड, ये तीन न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे। ये होगा आपका एफबीएचपी पे, दिस इज फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर निकालना है। तो ये थोड़ा और फंडामेंटल न्यूमेरिकल है जिसमें हमें बी की वैल्यू सब निकालना पड़ेगा, और कैलकुलेशंस में एफ बी चाहिए। तो मैंने एक्चुअली एफ इस बार आपको निकलवाया नहीं है, दे दिया है, बट यू नो ऑलरेडी द डिटरमाइन कैसे हम एफ निकालते हैं। एंड पीपीसी टीपीसी भी मैंने यहाँ लिख दिया, और जेड का वैल्यू भी निकाल के दिया है आपको। तो हम यही चीज यूज करेंगे, बार बार हम वो स्टैंडिंग कार्ड चार्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो दी प्रोसीजर नाउ। फिर से कल रिपीट कर दूंगा यहाँ पर, बट जेड एफ सी टीपीसी यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इसको, और ये तीनों न्यूमेरिकल हम कल सॉल्व करेंगे। ये है आपके पीवीटी सेल पे, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल बैलेंस। तो ये तीनों न्यूमेरिकल हम कल सॉल्व करेंगे। रिगार्डिंग दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल, बिकॉज इट टुक टाइम, और ये लेता भी है टाइम, क्योंकि इसमें मेथड है और टेबल लगता है, देन आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, फिर रिवर्स में जाना पड़ता है, फिर टेबल से चेक कराना पड़ता है, वेरीफाई कराना पड़ता है। सो इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दीज फंडामेंटल्स विच वी हैव? तो कोई भी डाउट हो किसी को भी, प्लीज लेट मी नो। नो डाउट, ठीक है, देन आई विल स्टॉप हियर टुडे, वी विल मीट नाउ टुमारो। बाय एवरीवन।